Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello to each and every one of you, and welcome to the continuing lecture series based on the explanation of dissolution of a partnership firm applicable to SYJC 12th Standard Maharashtra Board. Okay. Now that the formality has been done, let's move on ahead. When in the last few lectures, I solved two questions in such a manner that in different lectures, I taught you different steps of dissolution. Now, I am not going to tell you, अभी मैं पिछले 5-6 lectures में जो हो चुका है वो repeat नहीं करने वाला हूँ कि ये जो चीज़ है dissolution, इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो हमने पूरा कर दिया है। उसका क्या किया जाता है, उसका टेक्निक क्या है, सारा कुछ कर दिया है। आज से और आगे हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है वो इलस्ट्रेशंस हो सकते हैं या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है कि सर ये सम कौन सा है, वो सम कौन सा है, तो जो लेक्चर का टाइटल है उसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आपको वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है विद इलस्ट्रेशन होगा या प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आज का जो क्वेश्चन है और आगे आने वाले क्वेश्चंस, हम सारे स्टेप्स एक साथ में करेंगे। ये स्टेप्स जो आप पीछे देखते हो 1 2 3 4 5 6, ओके, ये सारे जब आप लेजर्स बनाते हो उसके लिए एप्लीकेबल है। अब शुरू किए। लेजर्स का मतलब क्या हो गया, पहले तो क्वेश्चन का थोड़ा मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। आपको ऊपर एक बैलेंस शीट नज़र आएगा, उस बैलेंस शीट के अंदर आपको 2 पार्टनर्स नज़र आएंगे और पार्टनर्स का नाम गणेश, कार्तिक। तो जब मैं आपसे कहता हूँ या जब क्वेश्चन आपसे कहता है, जो आप आखिर में पढ़ सकते हो, शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, तो आज कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट नहीं है। ओके, आपको ये रेडी रखना है। रेडी कैसे रखना है? वेल, कुछ इस तरह मेरे पीछे। आप हमेशा नीचे से स्टार्ट करो, करीबन 6 लाइन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद में लेफ्ट साइड पे जो ऊपर बच गया आप उसको रियलाइजेशन लिख लो। राइट साइड पे आप करीबन 7 या 8 लाइन का कैश अकाउंट, और ये बीच में खुला मैदान रहेगा, उसको खुला ही रहने दीजिए। वो आपको कभी ना कभी कोई ना कोई अकाउंट के लिए ज़रूर काम आएगा। आज के लिए खुला मैदान। आप ये लेक्चर को पॉज कर सकते हो, ये आप बना सकते हो और फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। मैं पॉज नहीं होता हूँ, मैं आगे जाता हूँ। ओके, तो
आपको गणेश, ये जो मेरे पीछे है, और कार्तिक, ये नाम है पार्टनर्स के, वो लिख लेना है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको नजर आएगा कि उनका रेशियो 1:1 है, मतलब इक्वल है, तो आप वो भी लिख लीजिए क्योंकि वो पार्टनर्स के हिस्सेदारी में काम आता है। ओके, उसके अलावा बाकी सब डेकोरेशन अगर आपने कर लिया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं ऊपर से नीचे। ओके, क्या कहा है? गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली से पता चला 1 रुपया 1 रुपया। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी दुकान को परमानेंटली बंद करना है। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। हमेशा डिसोल्यूशन के चैप्टर में एक बैलेंस शीट आपको देंगे, उसमें ऑब्वियसली एसेट लाइबिलिटी होगा। सबसे मेन मुद्दा क्या है? बेच दे भर दे। ये मैंने आपको काफी बार पहले भी बताया है। क्या बेचना है? एसेट। क्या भरना है? लाइबिलिटी। और याद रखना, लाइबिलिटी को पे करना बहुत जरूरी है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, आपको आज और नेक्स्ट लेक्चर दोनों में समझ में आएगा कि जब तक आप आपके लाइबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी होती है लाइबिलिटी, आप ना भरो, दुकान आपका कभी भी बंद नहीं होगा ऑफिशियली। ओके, कभी बंद नहीं हो सकता है, हमेशा दिमाग में रखिए। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या दिया है पढ़ लेते हैं। क्रेडिटर, बिल पेएबल, रिजर्व फंड पार्टनर का पैसा है, हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली, ये फाइनल अकाउंट्स में नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट्स में रिजर्व फंड लाइबिलिटी में जाता है, बट वहां पर थिंकिंग अलग होती है। वहां पर क्या थिंकिंग होती है कि वहां पर तो बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, इसके लिए रिजर्व में पैसे रखो, बट यहां पर धंधा बंद हो रहा है, तो रिजर्व में पैसे रखकर कोई मतलब नहीं है। वो पैसे, एग्जाम्पल, आपके घर में, मैंने ये पहले भी बताया है आपको, कुछ खाने पीने का सामान बना है, बट आप एकाएक गांव जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? पूरा खाने पीने का सामान क्लियर करोगे। अगर वो आप फ्रिज में भी नहीं रख सकते, आप आपके नेबर्स को, पड़ोसियों को जाकर दोगे कि आप रखो, एटलीस्ट आप तो खा लोगे, हमारे घर पे रह जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। तो आप पूरा साफ करने की कोशिश करते हो, तो यहां पर भी आपको वही करना है। ओके, तो रिजर्व फंड आपको पार्टनर्स में उनके रेशियो के हिसाब से जो इक्वल है बांट देना है। उसके बाद में कैपिटल गणेश कार्तिक का, ये हम उसके अकाउंट में लिख लेंगे। फिर बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ये सारी चीजें रियलाइजेशन में जाएगी, क्योंकि रियलाइजेशन सबका सहारा है। अभी आपको ये नहीं समझा तो पिछले 2-3 लेक्चर आप डेफिनेटली देख लीजिए। उसके बाद कैश, तो आज हम बैंक के जगह पे एक कैश अकाउंट बनाएंगे। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैश दिया है या बैंक दिया है। उसके बाद एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। अगेन मतलब समझिए, मतलब क्या है? एसेट्स वर रियलाइज, बेच दिया। क्या क्या बेचा? बिल्डिंग बेचा, डेटर बेचा, स्टॉक बेचा, बिल रिसीवेबल बेचा। बेचेगा तो पैसा आएगा, अरे कुछ भी बेचो पैसे तो आएंगे। आप रद्दी भी बेचोगे, ओके, कुछ ना कुछ तो आएगा, पैसे तो आने हैं। हाँ, उसके बाद एंड गणेश अग्रीड। गणेश कौन है? अरे अपना पार्टनर है। टू टेक ओवर, गणेश क्या बोलता है? मुझको दो। अच्छा, क्या दो? पढ़ो आगे। फर्नीचर फॉर 10,000। वो बोलता है वो फर्नीचर मेरे लिए बहुत लकी है, वो सोफा, वो टेबल, वो चेयर मत बेचो, मैं ले लेता हूं, मैं घर पे रखूंगा, आराम करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फर्नीचर उसको दे देंगे, हमको तो पैसे मिल रहे, दुकान को पैसे मिल रहा है। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। ये क्या है? देखिए भाई, जब दुकान शुरू होता है ना तो भी आपको खर्चा करना पड़ता है, और जब दुकान बंद होती है तो भी खर्चा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको एसेट बेचने हैं। अगर एसेट बेचने, थोड़ा ना थोड़ा को आपको कोई एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको कहाँ पे पोस्टर कुछ लगाने पड़ेंगे, थोड़ा आपको विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा कि भैया दुकान बंद हो रही है, स्पेशल डिस्काउंट, आकर खरीद लो, तो खर्चा करना पड़ेगा। उसको कहते हैं या तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस या तो रियलाइजेशन एक्सपेंस, दुकान बंद करने का खर्चा, वो 2,000। फिर क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन कहता है आप रियलाइजेशन बनाओ, हमने रेडी किया,
आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, हमने रेडी किया, और आप कैश बनाओ। ओके, नो प्रॉब्लम। स्टेप 1, अच्छा देख लो, कंफ्यूजन ना हो। स्टेप 1 क्या है? ट्रांसफर CRP, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, टू द पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल आया पार्टनर को दो, रिजर्व आया पार्टनर को दो, प्रॉफिट एंड लॉस आया पार्टनर को दो। ट्रांसफर कैश ऑफ बैंक टू द कैश बैंक अकाउंट, तो हम करेंगे। ट्रांसफर रिमेनिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, सब उठा के डालो रियलाइजेशन में। इफ पार्टनर लोन इज गिवन, ये क्वेश्चन में गणेश पार्टनर है एंड कार्तिक, बट पूरे क्वेश्चन में हमें गणेश लोन कार्तिक लोन नहीं दिखा। सीधी बात है, चश्मे के साथ या चश्मे के बगैर नहीं दिखा। ओके, अगर होता तो कुछ हम अलग करते। स्टेप 1 क्या है? भैया बैलेंस शीट रफा दफा करो, तो चलो मेरे साथ में बैलेंस शीट रफा दफा करते हैं। हमें स्टेप 1 में जो जो पॉइंट्स दिए हैं वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या है? क्रेडिटर, बिल पेबल, इनका कोई अकाउंट नहीं होता, इनको हमें रियलाइजेशन में लिखना है क्रेडिट साइड पे। तो आप अगर ऊपर नजर मारो, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, काफी बच्चे ढूंढते बैठते, सर किधर गया किधर गया। देखो भाई, रियलाइजेशन एक ही अकाउंट है, ये वाला, और इसमें लेफ्ट में डेबिट है और राइट में क्रेडिट। तो मैंने कहा क्रेडिट साइड। ओके, तो ये क्रेडिट मतलब बाय लिखना पड़ेगा। बाय क्रेडिटर कितना? 18,400। बाय बिल पेएबल 5,600। इसका टोटल आप बाहर डाल दीजिए। ओके, 24,000। तो ये है स्टेप 1 का एक हिस्सा कि आप लाइबिलिटीज को डालो रियलाइजेशन में, जिसका कोई नहीं है। क्रेडिटर का कोई खाता नहीं है, बिल पेएबल का कोई खाता नहीं है, तो उनको कहाँ ना कहाँ पे तो शरण लेना पड़ेगा। हाँ, बरसात होना शुरू हो गई है, वो घुस गए रियलाइजेशन में। ओके, इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए, कहा रिजर्व फंड 20,000, ये पार्टनर का पैसा है, पार्टनर का हक है इस पे, तो हम ये पार्टनर को देंगे। तो मेरे पीछे नहीं, मैं थोड़ा उस तरफ चला जाता हूं, आपको यहाँ पे नजर आएगा। बाय रिजर्व फंड हाफ हाफ, तो गणेश को 10,000 और कार्तिक को 10,000। सिंपल, नो झगड़ा, दोनों खुश। और इसके बाद कैपिटल दिया था, अभी कैपिटल भी तो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा ना, बट आप बाय गणेश कैपिटल, बाय कार्तिक कैपिटल नहीं लिख सकते हो, तो आपको लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस जो हमने पहले से लिख के रखा है, क्योंकि आप भी वो हमेशा कर सकते हो। ओके, क्या लिखे? गणेश का 40,000, कार्तिक का 80,000। इसके लिए मैं वहां पे नहीं हूं ताकि आपको वो नजर आए। प्लीज अंडरस्टैंड, आपने सारी चीजें क्रेडिट में लिखी है। ये जो मेरे ऊपर है वो क्रेडिट है, रियलाइजेशन, और जो पार्टनर का अकाउंट है उसमें भी क्रेडिट। अब जब हम एसेट में जाएंगे तो हम डेबिट की तरफ अपने रास्ते को मोड़ लेंगे, अपने गाड़ी को मोड़ लेंगे। चलिए भाई, चेंज करते हैं। थोड़ा मैं फास्ट हो सकता हूं, अगर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर रहा तो अपने स्पीड को मैं कम कर लूँगा। अगर लिखने में आपको परेशानी होती है तो आप पॉज कर लो, ओके, और फिर आप लिख सकते हो। मेरी कोशिश ये है कि आपका स्पीड मेरे स्पीड तक आ जाए, ना कि उल्टा, क्योंकि एग्जामिनेशन में अकाउंटेंसी तो पता ही होना चाहिए, मैथ्स भी पता होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड स्पीड भी होनी चाहिए, तो ही भैया गाड़ी टाइम पर डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। ओके, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, 5 एसेट, इनका कोई नहीं है। उसके बाद कैश है, कैश का खुद का अकाउंट है, तो उसके पहले जो 5 है वो एक एक करके डेबिट साइड पे चले जाएंगे। तो मैं लिख लेता हूं, बिल्डिंग का 88,000, फर्नीचर का 12,000, ये सबको कहते हैं बुक वैल्यू, क्योंकि ये बुक में दिया गया था। नेक्स्ट, डेटर्स का 32,000, स्टॉक का 24,000, बिल रिसीवेबल 4,000, क्योंकि ये इनर कॉलम में लिखा है, इसका टोटल करके हम बाहर डाल देते हैं, तो वो आता है 1,60,000। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे पीछे जो चल रहा है वो है
लेजर। जर्नल अलग होता है, मैंने अभी तक जर्नल नहीं सिखाया है, बहुत जल्द मैं जर्नल भी सिखा दूंगा। ओके, इसके बाद क्या था क्वेश्चन के अंदर? वेल, देख लेते हैं। कैश 4000, हाँ तो कैश का अकाउंट है, ये आप ऊपर देख सकते हो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यू कैन नॉट, आप उसके अंदर टू कैश या बाय कैश नहीं लिख सकते, सीधी बात है, क्योंकि वो अकाउंट्स में गलत प्रेजेंटेशन है इसके लिए। तो आपको बैलेंस लिखना है ब्रॉट डाउन, कितना? 4000, तो अमाउंट कॉलम में आप 4000 लिख लो। ये करने के बाद आप बड़े गर्व से कह सकते हो मेरा स्टेप 1 खत्म हुआ, मेरा स्टेप 1 खत्म हुआ। तो स्टेप 2 क्या है? क्वेश्चन देख लो, नीचे एडजस्टमेंट्स दिए हैं, 2 ही लाइन के बट एडजस्टमेंट्स दिए हैं, तो आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं। यही सेम चीज आपको स्टेप्स में लिखा गया है। ए, एसेट सोल्ड, बी, लाइबिलिटी पेड, सी, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। आज है, आज है, मुझे लगता है गणेश कुछ पार्टनर एसेट ले रहा है, या डी, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर। वो नहीं है आज, जो उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, बट हम कर रहे हैं स्टेप 2, सॉल्व एडजस्टमेंट्स। इसमें 2 एडजस्टमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? कि एसेट बेच दो, लाइबिलिटी भर दो। ओके, हमें क्या कहा है? एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। अच्छा, बिल्डिंग बेच के 82,000, डेटर को बेच के 22,000, स्टॉक का 20,000, बिल रिसीवेबल का 3,200, एंड फिर कहा गणेश अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 10,000। प्लीज अंडरस्टैंड, इवन दो ये अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट है, बट इसमें 2 हिस्से हैं। कुछ एसेट्स आपने बेचे हैं और आपको पैसा मिला है, और कुछ एसेट आपने पार्टनर को दे दिया कि गणेश आप रख लो। तो ये आप साथ में नहीं कर सकते हो, आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। और कुछ बच्चों को ये रीड करने में, पढ़ने में और समझने में टाइम जाता है। तो क्या आप कभी कंफर्टेबल होगे? क्यों नहीं, कितनी भी बड़ी गाड़ी आप क्यों ना चला लो, शुरुआत में थोड़ा धक्का मुक्की होगा, बट जितनी ज्यादा बार आपको चलाओगे, सीखोगे, और उसमें आप बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट होते जाओगे। तो उसकी चिंता आप ना करें। ओके, कौन से एसेट बेचने हैं? बिल्डिंग बेचना है, डेटर बेचना है, स्टॉक बेचना है, बिल रिसीवेबल, 4 एसेट बेचने हैं। 1 मिनट, किधर से बेचने का है? देख भाई, ऐसा है, ये है हमारा डायग्राम, वो रहे गणेश, ये रहे कार्तिक, एक डब्बा रियलाइजेशन, एक डब्बा कैश। तो ये डब्बे जो है ये अकाउंट को दर्शाता है, ये रिप्रेजेंट करता है। आपने रियलाइजेशन के अंदर बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, मशीन सब कुछ रख दिया है, क्रेडिटर, बिल पेबल सब कुछ है रियलाइजेशन में। उसमें से 4 एसेट आपको बेचने हैं, तो वो बाहर जाएगा, एसेट बाहर जाएगा ना, और पैसा अंदर जाएगा। एसेट बाहर, पैसा अंदर। प्लीज एक रफ पेपर पे ये डायग्राम और ये एरोबाजी डेफिनेटली करें, क्योंकि अगर आपको एरोबाजी समझ में आ गई तो बाजी आपने जीत ली। सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, क्या करना है? देखो, एसेट बेचे, बिल्डिंग बेचा, डेटर बेचा, स्टॉक बेचा, सारा कुछ बेचा और पैसा बैंक में डाला। जहां पे एरो पॉइंट करता है, ओके, पॉइंट करता है, ए तू, हाँ, वो कैश को पॉइंट करता है। तो कैश को आपको डेबिट करना है और रियलाइजेशन को क्रेडिट। कोई भी आपसे पूछे, स्टूडेंट प्लीज टेल मी द जर्नल एंट्री फॉर एसेट सोल्ड, आप क्या बोलोगे? कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज हाउ यू स्पीक, वैसे आप बोलते हो एक जर्नल एंट्री, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। आपको जर्नल नहीं करना, आपको लेजर करना है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि जर्नल सेम है जो आप अभी बोलने वाले हो। कैश के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना कैसे है, चलिए वो भी देख लेते हैं। कैश के डेबिट में आप चले जाइए, ये कैश है, ये डेबिट है, क्या लिखना है? टू रियलाइजेशन, क्योंकि वो था एंट्री, और आपको ऐड करना है बिल्डिंग का पैसा, स्टॉक का पैसा, डेटर का पैसा, फर्नीचर का पैसा ऐड करना है। ऐड करोगे तो आपको आएगा 1,27,200। अभी ऑब्वियसली
ये पर्दे के पीछे की बात है, एडिशन आपको आपके रफ पेपर पे डेफिनेटली करना पड़ेगा। ये हुआ 2, हर 2 का बाय होता है क्योंकि अकाउंट्स में ये जोड़ी में मिलता है। ओके, कैश में आपने लिखा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में उल्टा उल्टा आप लिखोगे क्रेडिट में बाय कैश, तब जाके ये जोड़ी पूरी होती है, ये जोड़ी पूरी होती है। कितना? 1,27,200। बट रियलाइजेशन क्योंकि मेन अकाउंट है, उसके अंदर पूरी जानकारी होनी चाहिए। मीनिंग आपको ये लिखना है कि आपने क्या क्या बेचा। पहले टू एंड बाय हो गया, वो सही है, बट अभी आप थोड़ा डिटेल में बताओ कि आपने क्या क्या बेचा। ओके, पहला तो हमने बिल्डिंग बेचा 82,000 के लिए, डेटर्स बेचे मतलब कस्टमर्स 22,000 मिला, स्टॉक बेचा 20,000 और बिल रिसीव बेचा 3,200। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन, ये नरेशन नहीं है। अगर आप जर्नल एंट्री करते हो तो उसके नीचे होता है नरेशन, ये नरेशन नहीं है, ये है डिस्क्रिप्शन। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट क्योंकि वो मेन अकाउंट होता है, वहां पे आपको देना है। अगेन थोड़ा थोड़ा आप 2-3 सम मेरे साथ में करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लीज, मैंने ये पहले बताया है बट कोई तकलीफ नहीं है दोबारा बताने में या रिपीट करने में। अकाउंट्स का विषय ये जो है पीछे, इसको पढ़िए मत, देखिए मत, इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक पेन टू पेपर नहीं होगा, और बिकॉज सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है ना, वो पेन पकड़ना ही कुछ लोग भूल गए हैं, क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है, अरे 2-3 महीने को पेन ही हाथ लगाया नहीं तो कैसे पकड़ते थे। एक्चुअली ये सिचुएशन है कुछ लोगों का। प्लीज प्रैक्टिस करें, हाथ जोड़ सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए नहीं, अपने लिए। ओके, हाँ, तो ये हो गया एसेट बेचना। फिर क्या था? वेल कंटिन्यू। गणेश कौन है? अरे अपना पार्टनर। अग्री टू टेक ओवर। गणेश क्या बोलता है? मेरे को दो फर्नीचर, दो मेरे को 10,000। हम बोलेंगे कोई तकलीफ नहीं है गणेश, ले लो यार, ले लो। अच्छा, तो गणेश आप वहां पे हो, फर्नीचर किधर है? ऊपर रियलाइजेशन में। तो गणेश बोलता है मेरे को दे दो, दे दो, ले लो। देखो सिंपल बात है, आपको एरो पॉइंट हो रहा है, कहां से? रियलाइजेशन से फर्नीचर निकाला और गणेश को दिया हमने, गणेश को पॉइंट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उंगली गणेश की तरफ है, तो हम गणेश को डेबिट करेगा। जर्नल एंट्री अगर आपसे पूछे, हिचकिचाइए मत, बड़े फर्राटे से आंसर देने का। कैसे? गणेश कैपिटल डेबिट, गणेश नहीं बोलना, गणेश कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ये हुआ जर्नल एंट्री। मैं रिपीट करता हूं, ये हुआ जर्नल एंट्री, गणेश के खाते में डेबिट साइड में। चलिए जी देख लेते हैं गणेश किधर है। देखिए ये गणेश है, ये मेरे पीछे भी गणेश है, बट ये क्रेडिट है, इधर मत आना, इधर मत आना, डेबिट में जाना। ओके ओके, ये हो गया डेबिट। क्या लिखूं? टू रियलाइजेशन 10,000 गणेश के खाते में, गणेश के कॉलम में। ये दो खाते हैं, गणेश कार्तिक, बट ये अलग अलग खाते हैं। टू किया तो बाय किधर? अभी देखो ना, आपने गणेश में लिखा रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में गणेश उल्टा आंखों के सामने है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आंखों के सामने। ओके, तो ऊपर जाता हूं, रियलाइजेशन क्रेडिट में, यहां पे बाय गणेश कैपिटल। कैपिटल लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना मार्क्स आपके कटेंगे। ओके, बाय गणेश मत लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए क्या किया उसने, फर्नीचर टेकन ओवर। ओके, कोई भी एसेट पार्टनर ले सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता। ओके, तो गणेश ने ले लिया है फर्नीचर, पता नहीं, हो सकता है कार्तिक भी कहे नहीं 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 मेरे को भी कुछ दो, देखते हैं, अगर कुछ होगा तो हम रियलाइजेशन से उठा के उसको भी दे देंगे। ओके, तो ये हो गया टू बाय एसेट टेकन ओवर का। इसके बाद क्या पढ़ लीजिए, कहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस, दुकान बंद करने के खर्चे, अमाउंटेड टू 2,000। खर्चा खर्चा होता है, किसका जेब खाली होगा, ये बहुत जरूरी है। अभी बोला नहीं रे, सिर्फ इतना बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000,
मतलब 2000 का खर्चा तो हो गया, बट उन्होंने क्लियर कट नहीं बोला किसने पे किया। तो अभी कौन पे करेगा? वो गणेश भरेगा, ये कार्तिक भरेगा, कि वो कैश भरेगा? देखो किसी का नाम नहीं लिया तो वो कैश के गले में आ जाएगा। गणेश कार्तिक के गले में नहीं आएगा, कैश के गले में। कैश से पैसा गया, किसके लिए गया? रियलाइजेशन। तो आई रिपीट, पैसा गया रियलाइज। इट इज पॉइंटिंग, उंगली किसको दिखा रहा है? रियलाइजेशन को। देखो, समझो मत, देखो। ओके, मतलब समझना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैश डेबिट, गलत, मतलब मैंने गलत बोला। किसको पॉइंट कर रहा है? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन डेबिट, आप प्लीज देखो पीछे, टू कैश, रियलाइजेशन के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। ओके, किधर है ये? देख लो, ये रियलाइजेशन है, ये डेबिट है। तो इधर आपको टू कैश लिखना है, ब्रैकेट में आप लिख लो रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000। ये हो गया टू। बाय किधर आएगा? देखो रियलाइजेशन में, देखो इंपॉर्टेंट, इधर मत देखो, मुझे मत देखो, ऊपर देखो। रियलाइजेशन में आपने लिखा टू कैश, अभी उल्टा करो, कैश में आप लिखो बाय रियलाइजेशन 2000। बाकी पूरा राम कथा आपको सब बार रिपीट नहीं करना, सिर्फ रियलाइजेशन में आपको लिख के रखना है। ओके, एसेट बेचे, उसका एंट्री किया। गणेश ने फर्नीचर लिया, उसका एंट्री किया। रियलाइजेशन मतलब दुकान बंद करने के खर्चे हुए, उसका एंट्री किया। क्या अभी कुछ बचा है? एक्चुअली दिखता तो नहीं है क्योंकि खत्म हो गया क्वेश्चन। शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, आगे तो कुछ बोला नहीं है। देखो भाई, स्टेप्स देख लो, क्योंकि स्टेप्स से डिसिप्लिन बनता है। स्टेप 1 किया, स्टेप 2 किया, स्टेप 3 क्या बोलता है? चेक फॉर हिडन एडजस्टमेंट। ओ, अतः हे काया है हिडन एडजस्टमेंट, ये क्या होता है भाई? एग्जाम्पल, वेदर क्रेडिटर इज पेड। अच्छा, मतलब चेक करने का है। दया, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब चेक करना पड़ेगा गड़बड़ है कि नहीं। बिल पेएबल इज पेड, पार्टनर्स लोन इज पेड, पार्टनर्स लोन तो है ही नहीं, एनी अदर लोन इज पेड। एक मिनट देख लेते हैं ये बिल पेएबल का पेमेंट किया कि नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में तो था, कहाँ पे लिखा नहीं है बिल पेएबल का पेमेंट किया, कहाँ पे लिखा नहीं है क्रेडिटर का पेमेंट किया। तो क्या करने का? चुप बैठने का, मत बोल, बिल पेएबल को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता ना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिडन एडजस्टमेंट, कि आपने कंफर्म किया, आप जब दुकान बंद कर रहे हो कि आपने सारी जिम्मेदारियां पूरी की, सारी जिम्मेदारियां पूरी की। क्रेडिटर का तो पेमेंट ही नहीं किया, बिल पेएबल का भी पेमेंट नहीं किया, तो करना तो पड़ेगा। ओके, हिडन एडजस्टमेंट। अच्छा, बोला नहीं है तो भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों नहीं सॉल्व करना पड़ेगा? यू हैव टू पे क्रेडिटर, यू हैव टू पे बिल पेएबल। ओके, कौन देगा? गणेश कार्तिक का नाम नहीं लिया तो कैश से पैसे जाएंगे। कैश से पैसा गया रियलाइजेशन के लिए। आई रिपीट, कैश से पैसा गया रियलाइजेशन। आपने अभी किया, सेम एंट्री दोबारा, कभी दोबारा, कभी तिबारा, कभी चौबारा, मतलब रिपीट करना पड़ता है। रियलाइजेशन डेबिट, उधर ही टू करना है। कैश क्रेडिट, उधर ही बाई करना है। हाँ, अमाउंट थोड़े अलग है। एक बात बिफोर मैं सॉल्यूशन का आगे बढ़ाऊं, ये जो मेरे पीछे डायग्राम है, एग्जामिनेशन में आप अगर इसे करते हो तो पेंसिल में करें, उसके बाद में रब आउट कर ले। हाँ, अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके का डायग्राम अलाउड नहीं है, क्योंकि डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साइंस नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स होता तो चलो कोई ना कोई डायग्राम तो आता ही है, बट यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये जो डेबिट क्रेडिट है ना, आपको सिंपल हो जाए। एक बार आपको आदत लग जाती है, ओके, फिर ऑटोमेटिकली आपको ये डायग्राम की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप करते हो एग्ज़ाम में बेहिचक होके किए, बट
पेंसिल में करें और बाद में आप रब आउट कर लिए। हाँ, क्रेडिटर को और बिल पेबल का पेमेंट यहां से किया और पैसे गए, रियलाइजेशन डेबिट। अगेन गुनगुनाओ, मुंह में गुनगुनाओ, रियलाइजेशन डेबिट। नहीं समझा, फिर से बोलो, रियलाइजेशन डेबिट। तो क्या है ना, आपका ध्यान जाना चाहिए, अच्छा ये रियलाइजेशन है और ये उसका डेबिट है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, टू कैश। आपने दो लोगों को पेमेंट नहीं किया, क्रेडिटर बिल पेबल दोनों को करना पड़े। कितना, जितना लिखा है उतना तो करो, उसको कहते हैं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। ओके, तो चलो भाई, मैंने लिखा है, थोड़ा नजर नहीं आएगा बट क्योंकि वो हिडन है ना, हिडन एडजस्टमेंट, ताकि आपको पता चले हाँ ये था थोड़ा हटके। ये क्वेश्चन ने बिल्कुल नहीं बोला था, अगर मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करता तो पता ही नहीं चलता, बाद में ना मार्क्स लटक जाते। आप भाई किसको पे किया, क्रेडिटर को उसका पैसा दे दिया, बिल पेबल को उसका पैसा दे दिया, टोटल में 24,000। तो आपने लिखा रियलाइजेशन में कैश, अभी उल्टा करो, अभी उल्टा करो, कैश में आप लिखो बाय रियलाइजेशन 24,000। एंड अगेन कैश में आपको बाकी पूरा तामझाम रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये था एग्जाम्पल हिडन एडजस्टमेंट का। हमेशा ये चेक करो, जब भी घर के बाहर जाते हो ना, आप चेक करते हो ना, बटवे में पैसा है, मोटर बाइक में पेट्रोल है, चेक करो। ओके, ताला मारा है कि नहीं, चेक करो। उसी तरह यहाँ पे भी चेक करो। ओके, तो ये हो गया हिडन एडजस्टमेंट। इसके बाद का स्टेप क्या है, चलो भाई, स्टेप 4, टैली रियलाइजेशन अकाउंट, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अभी रियलाइजेशन अकाउंट जो मेन अकाउंट है उसको हमको टोटल करना है, उसमें या तो हमें प्रॉफिट या तो लॉस मिलेगा। चलो देख लेते हैं। ओके, तो डेबिट का टोटल 1,60,000 प्लस 2 प्लस 24, 1,86,000। अगर आप ये लिखते हो, आप ये प्लीज पेंसिल में लिखिए, इसको रब आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे बिंदास लिख सकते हो बट पेंसिल में। क्रेडिट में कितना, 1,61,200। अभी इसके बाद जो डायग्राम हमने इसके पहले बताया वो कोई काम का नहीं है, अभी आपका जो मेंटल मैथ्स है, ओके, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये काम आएगा। हैवी साइड कौन सा है, डेबिट। जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में अनगिनत क्वेश्चंस के लिए किया, वही रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पर। डेबिट भारी है तो डेबिट का टोटल दोनों तरफ आएगा, पेन में डिफरेंस है 24,800। अच्छा, ये क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस। देखो, डेबिट में आपका डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो खर्चा ज्यादा था ना, तो ये लॉस होगा। ओके, लॉस ऑन रियलाइजेशन। और किसके गले में ये जाएगा, दोनों पार्टनर, गणेश कार्तिक, हाफ हाफ। ओके, हाफ हाफ क्यों, क्योंकि वो उनका रेशो है। ओके, खुशी या गम, हाफ हाफ। तो चलो भाई, 12,400। ओके, तो ये हुआ हमारा आई थिंक चौथा स्टेप, सॉरी आई थिंक पांचवा स्टेप। देख लेते हैं। हमने रियलाइजेशन को टोटल किया, टैली किया, कास्टिंग किया, और उसमें हमें लॉस मालूम पड़ा और लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, इसके बाद क्या कहता है, स्टेप नंबर 5, टैली पार्टनर्स कैपिटल, फाइंड अमाउंट ऑफ सेटलमेंट, ये वाला। अच्छा, तो अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल को टैली करना है, चलो वो भी कोशिश कर लेते हैं। पहली बात तो आपने अभी रियलाइजेशन में लिखा गणेश कार्तिक, तो उल्टा तो होगा ना, एक में बाय दूसरे में टू, एक में टू दूसरे में बाय। तो आप अभी गणेश कार्तिक के डेबिट में लिखोगे टू रियलाइजेशन, दिस इज द सेकेंड इफेक्ट। हर डेबिट का क्रेडिट, हर टू का बाय, हर बाय का टू, और आप अमाउंट लिख लो 12,400। नाउ योर कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी ऑन व्हाट इज दैट बिलो। ओके, तो मैंने वो जगह खाली कर लिया। हाँ, अभी हम पहले गणेश को टोटल कर लेते हैं, उसका एक आंसर आएगा। कार्तिक को टोटल कर लेते हैं, उसका एक आंसर आएगा। गणेश का क्रेडिट हैवी है जो सीधे मेरे नीचे है। ओके, और डेबिट में आपको डिफरेंस आएगा।
गणेश आप ओरली कर सकते हो क्योंकि पॉसिबल है, 50,000 है। आप जब माइनस करो 22,400 तो डिफरेंस आपको आएगा 27,600। आप अपना टाइम ले सकते हो, बट ऐसा नहीं कि 10 मिनट लेना, 1 मिनट में उसको माइनस कर लेना। कार्तिक का क्रेडिट का टोटल 90,000 है। जब डेबिट में आप माइनस करते हो आपको आता है 77,600। वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो आपको नीचे दिख रहा है ना, गणेश में 27,600, कार्तिक में 77,600, ये क्या नंबर्स है? इसको कहते हैं सेटलमेंट। क्या मतलब है सेटलमेंट का? देखिए, दुकान बंद हो रही है, आपने बाहर वालों को सबको पे कर दिया, आपने क्रेडिटर का पैसा दे दिया, बिल पेबल का पैसा दे दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस दे दिया, आपने आपकी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर दी बाहर वाले के प्रति। पार्टनर्स का क्या? उनको भी तो पैसा मिलना चाहिए, वो मालिक है। हाँ, तो मालिक को एंड में तो पैसा मिलना चाहिए, ये एंड है, ये एंड है। तो आपको पैसा, ये जो है डिफरेंस, ये है डेबिट द रिसीवर, मतलब दोनों को पैसा जो कैश में पड़ा है ऊपर ऊपर वो मिल रहा है। इसके लिए हम कहते हैं कैश फाइनल सेटलमेंट। हाँ, तो पार्टनर का खाता बंद होता है और उसमें जो पैसा बचता है वो कैश में हम भेजते हैं। उधर आया 2, ओके, वो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट चला जाएगा। उधर आया 2, ऊपर आना चाहिए बाय। तो ये कैश के अकाउंट में आपको करना है बाय। तो बाय गणेश कैपिटल, उसका अमाउंट आप लिख लीजिए। बाय कार्तिक कैपिटल, उसका अमाउंट आप लिख लीजिए। एंड लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा कहते हैं ना, स्टेप 6, ओके, थोड़ा ना रॉन्ग टाइमिंग पे आ जाता है। क्या कहता है? टैली कैश बैंक अकाउंट, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। अच्छा, तो कैश या बैंक अकाउंट मैंने लास्ट में बनाया है, उसको मुझको टैली करना है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि दोनों साइड सेम आ जाए, मतलब डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम आ जाए। ये सेम मेरे ऊपर का जो अकाउंट है ना, क्यों आना चाहिए? क्योंकि भाई जितने पैसे आए उतने पैसे गए, अगर नहीं तो कुछ फ्रॉड हुआ है। सो फ्रॉड नहीं हुआ है तो भैया आपका सेटल हो जाएगा, हिसाब किताब सेटल। सो दैट इज अ साइन, एक चिन्ह है, भैया आपका अकाउंटिंग सही था। देख लेते हैं सही आया कि नहीं। डेबिट में आता है 1,31,200 एंड ऑल्सो क्रेडिट में आता है 1,31,200। सो आई रिपीट, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम से था। अगली बार हम जब मिलेंगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट प्लीज़ एक फॉर्मेट रेडी रखें, और ये फॉर्मेट है बराबर। ये बीच में जो मैदान खाली है वो अगली बार यूज़ होगा, क्यों होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बट ये पूरा रेडी रखो सो दैट जब भी हमारा अगला लेक्चर प्रीमियर होता है और आपके पास फॉर्मेट रेडी है तो आप जल्द 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 मेरे साथ में सॉल्व कर सकते हो। मैंने बोला मेरी स्पीड आप तक नहीं, आपकी स्पीड मेरे तक आना ज़रूरी है, क्योंकि तो ही आप एग्ज़ाम में बाजी मार सकोगे। ओके, सो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। और ये सोल्यूशन के अलावा ये जो डायग्राम हमने बनाया था, जिसके वजह से हमारे काफ़ी मुश्किलात सिंपल हो जाते हैं। एरो मारा, डेबिट क्रेडिट आया, इधर एरो मारा, डेबिट क्रेडिट आया, आपको समझ आया। अगर ये वाला एक्सप्लेनेशन जच गया आपको तो कृपया करके लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई सुझाव आपके पास है हमारे लिए तो कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए। कोई डाउट आपको होगा तो भी कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। पुराने हो तो दूसरों तक चैनल के और चैनल के कंटेंट की जानकारी अवश्य पहुंचाए। जब तक हम दोबारा ना मिले, बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का सभी का ख्याल रखिए। आपका दिन बढ़िया जाए। Good day to all of you. God bless. Bye.